Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 9 home science class, and this is chapter number 4. चैप्टर नंबर 3 मैंने कट कर दिया है, वो आपको नहीं पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 होम इकोनॉमी। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, classification of human wants, factors affecting human wants, economy, principles of home economy, determinants of efficient home economy। तो ये चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। होम इकोनॉमी डील्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ऑफ द होम और डूइंग फैमिली कोर्स थ्रू इकोनॉमिक एफर्ट्स। A family has unlimited wants. We know that कि सबके unlimited wants होते हैं, चाहे वो कोई भी family हो. The means with which these wants can be satisfied are limited and can be put to alternative uses. Therefore, the housewives has to choose between wants and are to be satisfied and that are to be postponed on the basis of their order of priority। कि जो हाउसवाइफ होती हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को उपलब्ध कराएं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको पहले अवेलेबल कराएं और बाकी की चीज़ों को क्या करें, वो पोस्टपोन कर सकती हैं, जब उनकी ज़रूरत हो तब उस चीज़ को अवेलेबल करने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ फैमिलीज़ वांट। अब अगर आप फैमिली की जो ज़रूरत है उनको सेटिस्फाई कर सको, सारे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सको, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? अ फैमिली ओज इज एक्सिस्टेंस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ऑफ इट्स मेम्बर्स। मैकलर डिफाइंस फैमिली एज अ ग्रुप defined by sex relationship for the procreation and upbringing of children। फैमिली को उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। It performs functions which are either economic or semi-economic in nature. It is an important unit of economic life. Firstly, it participates in the process of production through the organization of business. Secondly, it is the institution that transmits property and happiness. Thirdly, it often transmits a vocation from generation to generation. Fourthly, family draws up its budget for satisfying and various needs of the family members. And lastly, the family maintains the economy in order to satisfy the basic wants of the family members। तो ये सारी चीज़ें हैं एक फैमिली में जो चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द फादर एंड मदर बोथ, स्पेशली बाय द लेटर। हैंस द हाउस वाइफ, जो मदर होती हैं घर की, शुड नो द नेचर एंड काइंड्स ऑफ वांट्स। इन द इन्फेंसी द चाइल्ड नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम inclemencies of weather. He needs food for its growth. As he grows into childhood, he wants undergo a change। हर जगह कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं और जैसे जैसे ये बदलाव होते हैं ज़रूरतें भी बदलती जाती हैं। Besides the fundamental needs of protection against hunger and cold, he needs playmates and toys। अब उसकी ज़रूरत क्या हो गई है? playmates हो गए हैं and toys हो गए हैं। In the adolescence, he wants increase further। He needs good education, fashionable clothes, nourishing food, recreation and rest। फिर से उसकी ज़रूरतें चेंज हो गई। Man's need are unlimited in number। इंसान की ज़रूरतें क्या हैं? बिल्कुल अनलिमिटेड हैं। As one wants satisfied, other wants are felt immediately। अगर एक ज़रूरत पूरी होती है तो कुछ न कुछ अगली ज़रूरत भी उनके पास होती है। A wise housewife must know about the following features of wants: nature of wants of our family members, the characteristics of human wants, ways of satisfaction। Thus, essential elements of our wants are as follow: desire of an article। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कि डिज़ायर कितनी है। कैपेबिलिटी टू परचेज, willingness
to a part with the economic means for the purpose. Now, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन वांट्स की? पहली बात तो वांट्स आर अनलिमिटेड, कि वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है. एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अदर वांट्स कम अप. एक ज़रूरत जैसे ही पूरी हुई दूसरी ज़रूरत आ गई. सपोज द वांट ऑफ हैविंग अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेटिस्फाइड, कि आपको पहले ये चाहत थी कि आपके पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हो. देन आफ्टर सम टाइम द फैमिली थिंक्स हैविंग अ कलर टीवी. तभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब कलर टीवी होनी चाहिए. दिस क्वालिटी ऑफ वांट्स डिपेंड अपॉन अ लॉ विच स्टेट्स दैट मटीरियल प्रोग्रेसेस एंड इंक्रीजेज ऑफ वांट गो हैंड इन हैंड. नेक्स्ट है आपका ईच ह्यूमन वांट इज सैटिएबल. मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई देम ऑल आर लिमिटेड. even then every want at a particular time is completely suitable. संतोष. ठीक है. wants are competitive. want in general compete with one another, but as the economic means to satisfy them are limited, therefore they are satisfied in the order of preference. The want which provides maximum utility is satisfied first, another wants follow it. कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, जिसको आप आराम से अरेंज कर सकते हो, सबसे पहले उस वांट को पूरी की जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट का नंबर आता है. Some wants are complementary. Generally, the wants have characteristics of supporting one another. For example, when we purchase specific utensils for preparing recipe, we want to purchase the essential commodities for it. Wants are recurrent. Every want can be satisfied completely at a particular moment, but after some time, it is felt again. For example, want of food इज़ अ रिकरेंट वांट. क्या आपको भूख लगती है, आप खा लेते हो, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, फिर से आपको भूख लगती है. तो ये वांट क्या है आपकी, हमेशा चलती रहती है, पूरी की कुछ टाइम के बाद फिर से उसी वांट की ज़रूरत हो गई आपको. वांट टर्न्स इनटू हैबिट. कभी कभी क्या है कि आपकी किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत होती है, रेगुलर इंटरवल पे आप उस चीज़ को अगर मिल जा रहा है आपको, तो आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग. नेक्स्ट है वांट वेरी इन इंटेंसिटी. सम वांट्स आर वेरी इंटेंस वाइल अदर आर लेस इंटेंस. बेसिक वांट्स लाइक हंगर, थर्स्ट और स्लीप आर ऑफ हाई इंटेंसिटी. दो वांट्स compete with one another for satisfaction, yet they are not equally important and urgent. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट वांट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन फ्यूचर वांट्स. कि आपकी जो अभी की ज़रूरत है वो ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर की ज़रूरत को आप थोड़ा सा रोक सकते हो. वांट्स आर डिटरमाइंड बाय सोशल स्टैंडर्ड. कि अपने आसपास का स्टैंडर्ड देख के भी कुछ ज़रूरतें होने लगती हैं, जैसे कि फैशन. आप देख लो कि हम लोग जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, जो भी हम ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेस्ड अप होते हैं, तो उस टाइम पे जो चलन में है उस चीज़ को देखकर हम ऐसा करते हैं. नेक्स्ट इज़ वांट्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नॉलेज. कि जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं. ठीक है. तो ये तो हो गई हमारी ज़रूरतों की बातें कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर आप देख रहे हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स. ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो भी ह्यूमन वांट्स हैं उनके बारे में. तो इन सब चीज़ों के बारे में वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स. गुड बाय.